جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ تم زندہ ہے واللہ. پھر اسے احساس ہوتا ہے اپنی غلطی پر، وہ آ کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے. یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے جو تو گناہ کر کے آیا ہے سن، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ. تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پہ اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہم سے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے. تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے. قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے. جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کرتا رہا. یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا. سن لیا آپ نے کتنا کلیئر انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہا نبی کے پاس اور نبی کی قبر کے پاس آنے کا ذکر نہیں ہے. دیکھیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. اس پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ. پہلی بات کہ نبی کی حیات میں ہی جاؤ، نبی کے وصال کے بعد مت جاؤ. یہ قرآن عظیم کی کس تفسیر میں آیا ہے؟ بھائی تمہارے ہاں تو قیاس جائز نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو قرآن پہ قیاس کرو؟ ایک چیز. دوسرا، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی مرضی چلائی اس نے تحقیق اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. تم کون ہوتے ہو قرآن میں اپنی مرضی داخل کرو کہ قرآن میں تو کہا نہیں اللہ نے کہ دیکھو نبی کے زندہ ہے تب تک جانا، جب نبی کا انتقال ہو جائے پھر مت جانا. قرآن میں نہیں ہے. یہ تم نے یہ منطق لائی کہاں سے؟ کس کتاب سے لائی؟ تم اہل حدیث ہو، تمہیں چاہیے تھا ایک کوئی حدیث پیش کرتے. تم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہو اور اگر سلفی بولتے ہو تو، اور اگر ہو بھی سلفی تو کم سے کم سلف سالمین سے کسی کا قول ہی پیش کر دیتے کہ دیکھو فلاں امام نے لکھا کہ بھائی رسول کی زندگی میں جانا چاہیے، رسول کے بعد نہیں جا سکتے، قبر پہ نہیں جا سکتے. تفصیل بل رائے کر کے آپ نے اپنے آپ کو جہنمی بنایا کہ نہیں بنایا؟ پہلی بات. دوسری بات، جب مسلمان گناہ کرتے تھے بقول توصیف الرحمان صاحب کے تو وہ نبی کے پاس جاتے تھے مغفرت کے لیے. اب وصال کے بعد نہیں جا سکتے، یعنی جب نبی زندہ ہے تب گئے تو توحید اور نبی کے وصال کے بعد گئے تو شرک. تو گویا ان کے نزدیک زندہ سے مانگنا غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، مرنے کے بعد غیر اللہ بن گیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے جو زندہ ہے وہ بھی غیر اللہ اور جو وصال فرما گیا وہ بھی غیر اللہ. تو یا تو پہلے یہ طے کر لو کہ زندوں سے مانگنا جائز ہے اور مردوں سے مانگنا جائز نہیں، یا پہلے یہ کر لو کہ غیر اللہ میں تمہارے ہاں سب غیر اللہ میں، یا یہ تخصیص کر لو کہ نہیں صاحب غیر اللہ میں ہم زندوں کو نہیں مانتے، مردوں کو ہی مانتے ہیں. جب زندہ ہے تو ہم اللہ مانتے ہیں اس کو. تو یعنی نبی جب زندہ تھے تو سارا خدائی ڈپارٹمنٹ اللہ نے نبی کو دے دیا، جاؤ تم ہی بخشواتے رہو. اور جیسی نبی وصال ہو گئے تو اللہ نے کہا خدائی ختم، اب ڈپارٹمنٹ میرا ہے، میرے پاس آئے، تمہارے پاس نہیں جا سکتے، تم تو مردہ ہو گئے معاذ اللہ. یہ منطق آپ نے کہاں سے لائی؟ اور تیسرا جواب، دنیا قیامت تک یہ غیر مقلدین سے میرا قیامت کی آخری گھڑی تک میری نسلوں کو جواب دینا، اگر میں نہ ملوں تمہاری پوری نسلیں کھپ جائیں گی قیامت تک اور تم یہ جواب نہیں لا سکتے. جو تیسرا سوال کر رہا ہوں میں، یہ آیت کریمہ قرآن کی ہے کہ نبی تم گناہ کرو تو نبی کے پاس آؤ. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کر دیا ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا؟ وہ آیت بتاؤ. تم کون ہوتے قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے والے؟ قرآن کا کوئی بھی کلام قیامت تک کے لیے جب تک اس کے منسوخ کی آیت خود قرآن میں موجود نہ ہو، اگر ان کی جاہلانہ دلیل مان لی جائے تو کل آپ لوگ نماز پڑھنا سب چھوڑ دیجیے. غیر مقلدین سے کہہ رہا ہوں، سنیے آپ مت چھوڑنا بھائی. ہمارے نزدیک تو
हुक्म मौजूद है इनके नजदीक, इन्होंने नमाज पढ़ना छोड़ देना। और पूछे भाई क्यों नमाज नहीं पढ़ते? कहना वाक़िमुस्सलात कुरान में जो आया वो नबी के लिए आया है, नबी के बाद हमारे लिए थोड़ी आया। खिताब तो नबी और ईमान वालों सहाबा से, हमसे कहाँ है? तो कहा जाएगा बेवकूफ है तू, पागल आदमी है। कुरान में जो हुक्म आ गया वो कयामत तक के लिए है। अगर ये हुक्म आया नबी के जमाने में, नबी पर ये वही आई कि ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, अगर तुम जानों पे जुल्म करो तो नबी के पास आओ, तो ये कयामत तक के लिए हुक्म है। वरना तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि इस आयत को किस आयत ने मंसूख किया है। रहमत के लिए 4 चीजें जरूरी। रहमत रहम से बना है, किसी पर रहम करना है तो 4 लवाजमात जरूरी है। एक भी लवाजिम कम हो तो कोई रहमत नहीं बन सकता। पहला जो रहमत है उसका जिंदा होना जरूरी। गौर से सुने आप एक बात, जो रहमत है उसका जिंदा होना जरूरी। भाई बाप अपने बेटे पे रहमत है, मां अपनी औलाद के लिए रहमत है, औलाद अपने मां बाप के लिए रहमत का जरिया और सबब है। तो औलाद पर मां बाप रहम कब करेंगे, रहमत कब बनेंगे? तब जिंदा होंगे तब ना। मर जाएंगे तो रहमत हो सकते है? भाई आप रहम करना चाहते हैं किसी पर, किसी पे अपना फजल करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी पे आप अच्छा सुलूक करना चाहते हैं, तो सुलूक कब करोगे? जब आप जिंदा होंगे तब ना। अगर आप मर गए तो आप किसी पे रहम कर सकोगे? लोगों के रहम के मोहताज हो गए आप। समझ रहे हैं ना भाई? अगर आप भी मर गए, आप मुर्दा हालत में पड़े हैं, आप किसी पर रहम कर सकते हैं? लोग आप पर रहम करें तो आपको दफना दे, और लोग आप पर रहम ना करें तो लाश पड़ी रहे, सड़ जाए, गल जाए, बदबू पैदा हो जाए। आप लोगों के लिए रहमत के रहम के मोहताज। और कुरान कह रहे हैं महबूब हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप आलम के लिए रहमत है। तो आलम के लिए रहमत तभी होंगे जब आप जिंदा हो। तो इससे पता चला नबी जिंदा है। अगर नबी जिंदा ना हो तो भी रहमत नहीं हो सकता। तो रहमत के लिए जिंदा होना जरूरी। आयत करीमा से वाज़ेह होगा कि हमारा नबी जिंदा है। बस फर्क क्या है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहे मगर आप जिंदा है। पहली खुसूसियत। दूसरी, हाल से वाकिफ होना चाहिए जो रहमत हो। भाई मैं अपने दोस्त के लिए रहमत हूं, रहम करना चाहता हूं, तो मुझे अपने दोस्त के हालात से वाकफियत होनी चाहिए। मालूम होना चाहिए कि मेरा दोस्त तकलीफ में है या नहीं, क्या उसको जरूरत है, क्या परेशानी है। जब उसके हाल से मैं वाकिफ होऊंगा तभी तो उस पर मैं रहम करूंगा ना, तभी तो उसके लिए मैं रहमत का सबब बनूंगा ना। अगर मुझे उस दोस्त के हाल से वाकिफ नहीं, और वो दोस्त अगर मुझे अपना हाल बताए तो मैं सुनने से कासिर, समझने से कासिर, उसकी मैं परेशानी सुन नहीं सकता, उसकी परेशानी मैं सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, मैं उस पर रहम कर सकता हूं, उसके लिए रहमत का सबब बन सकता हूं? नहीं। मेरा जिंदा होना जरूरी, बात को समझना जरूरी, उसके हाल से वाकिफ होना जरूरी। तो रहम करने के लिए जिंदा के साथ हालात से वाकिफ होना भी जरूरी। कुरान ने कहा महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। मतलब यह कि महबूब हमने आपको इल्म गैब भी ऐसा अता फरमाया कि फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने सारे आलम के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। और रहमत के लिए, रहम के लिए पहली चीज जरूरी क्या? जिंदा हो। जिंदा होगा तो रहम करेगा। मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। दूसरा, हाल से वाकिफ हो, हालात से बाखबर हो। हालात से बाखबर होंगे तो भी मदद कर पाएगा। हालात ही ना मालूम हो तो मदद कैसे करेगा? तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी उम्मत के हालात से भी बाखबर हैं। और तीसरी चीज, करीब हो। जो बाईस रहमत है उसका करीब होना भी जरूरी मुसीबत ज़दा से। और कुरान कह रहा है कि हमारा महबूब तमाम आलम के लिए रहमत है। तो रहमत है तो रहमत का, रहम का करीब होना भी जरूरी। तो हमारा रसूल करीब भी है। और कितना करीब है, कितना करीब है? कुरान ने कहा अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। हमारा नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। गुनाहों के दलदल में फंस गए हैं इंसान,
जहन्नम से बचकर जन्नत की तरफ जाना चाहता है, बताए कुरान क्या रास्ता है जन्नत की तरफ जाने का? तो कुरान पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत 64 में इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ मेरे बंदो अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म करो तो क्या करो? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ऐ मेरे बंदो अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे नबी की बारगाह में पहुंच जाओ, मेरे नबी के पास आओ और क्या करो? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तगफार करो, वस्तगफरा लहुमुर रसूल, और मेरा रसूल मेरा महबूब अगर तुम्हारे लिए शफाअत कर ले, तुम्हारा शफी बन जाए, लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तौबा कबूल करने की शर्त क्या रखी अल्लाह ने? मैं तौबा तब कबूल करूंगा जब मेरा महबूब की बारगाह में आओ, और मेरे महबूब की बारगाह में आने से भी काम नहीं चलेगा, काम तब मुकम्मल होगा जब मेरा महबूब तुम पर रहम करे, और रहम ये करे कि तुम्हारा शफी बन जाए, तुम्हारी शफात करे और तुम्हारे लिए रब की बारगाह में हाथ उठाए, परवरदिगार ये तेरा गुनाहगार बंदा, ये मेरा गुनाहगार उम्मती मेरे पास आया है, मुझे शफी बनाता है, मैं इसका शफी बनकर, इसका वसीला बनकर तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं, तू माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाता है लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। यह है कुरान अजीम की मंशा। और इस आयत करीमा से 2 बातें 3 बातें, बल्कि जितने आप नुकात निकाले मैं समझता हूं कम है। एक बात तो यह मालूम हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो गुनाहगारों को बख्शवाते हैं। दूसरा तो यह मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को हुक्म दिया कि गुनाह करो तो मेरे नबी के पास आओ। तो जो लोग कहते हैं कि मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, कब्र पर नहीं जाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि हज करने जाते हो तो हज ही करो, और जो हज के साथ नबी की कब्र पर गया उसने अपने हज को जाया कर दिया, जैसे अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा, इब्न तैमिया ने लिखा। तो मालूम हो गया कि इनका अकीदा बातिल है, कुरान के खिलाफ है। कुरान कह रहा है कि नहीं, जब तक तुम मेरे महबूब की बारगाह में आओगे नहीं, मेरे महबूब की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे नहीं, मैं तुम्हारी तौबा हरगिज कबूल करने वाला नहीं। तो मालूम हुआ कि मज़ार रसूल पर जाने का भी हुक्म दिया जा रहा है, नबी के पास जाने का भी हुक्म दिया जा रहा है, नबी को शफी बनाने का भी हुक्म दिया जा रहा है, और यह भी बताया जा रहा है कि अगर मेरा महबूब शफी ना होता तो फिर तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला ना पाते। मैं तौबा कबूल करने वाला इसलिए हूं, मैं तौबा इसलिए कबूल कर रहा हूं कि मेरे महबूब ने तुम्हारी शफात कर ली है, मेरे महबूब ने तुम्हारे लिए अपने हाथों को बुलंद कर दिया है। अगर तुम हाथ बुलंद करते, तुम्हारे गुनाहगार हाथों को ठुकरा दिया जाता, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दिया जाता। मगर मेरा महबूब मासूम है, मेरा महबूब है, मैं इसकी रजा चाहता हूं, वो मेरी रजा चाहता है। जिसमें इसकी रजा उसमें मेरी रजा, इसने तुम्हारे लिए हाथ उठाया है, मेरी रजा यह है कि इसकी रजा के तहत तुम्हें माफ कर दूं। जाओ, तुम्हें माफ कर दिया गया।